work on Carnot cycle, it will produce maximum work. Okay, so Carnot cycle is the best cycle. Okay, apart from that, it consists four reversible process. So Carnot cycle has four process and all four processes are reversible. It means we can say Carnot cycle is a reversible cycle. Why it is reversible cycle? Because its all processes are reversible. Okay. It consists two compression and two expansion process. So it has four process in which two are of compression and two are for expansion. So दो प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा है और दो प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है. अब ये चार प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? टू आर आइसोथर्मल एंड टू आर रिवर्सिबल एडियाबैटिक. ओके, so after that we have discussed the TS diagram and PV diagram. So this is the TS diagram of Carnot cycle. So first process is reversible adiabatic expansion. So expansion will be take place in a adiabatic manner. So this process 1 to 2 is reversible adiabatic expansion. After that isothermal compression. So compression will be take place isothermally. So it is TL, temperature remain constant and it will reject heat QL. After that reversible adiabatic compression. So in the compression WC amount of work is consumed and then isothermal expansion in which heat is supplied which is equal to QH. One thing you should notice that this cycle work between two temperature limits because this T1 is equal to T4 which is equal to TH and this temperature T2 is equal to T3 which is equal to TL. So this cycle is working between two temperature limit. One is higher limit and second one is lower limit. तो दो टेम्परेचरों के बीच में ये साइकिल काम कर रही है. ओके, and these temperature are TH and TL. First one is the temperature of high temperature reservoir and second is the temperature of low temperature reservoir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. After that we have draw the PV diagram. So this is the PV diagram. This is the isothermal process on the PV diagram. Sorry, and this is the reversible adiabatic processes in PV diagram. Okay. Then we have discussed the Carnot cycle in the piston cylinder arrangement, and then we have discussed the Carnot cycle in the open system. So then we calculate the efficiency. So efficiency is equal to output upon input. So what is the output? W net, and what is input? QH. So we are supplying heat QH and we will get work W net. So W net can be written as QH minus QL. We know that. Okay. So if we simplify it, we will get efficiency equals to 1 minus QL upon QH. Clear? Now, when listen carefully and note it down. ठीक है, इसको अच्छे से सुनो और याद कर लो बिल्कुल ध्यान से. किसके लिए बात कर रहा हूं? If our heat engine is worked on a reversible cycle, अगर जो हमारा हीट इंजन है वो रिवर्सिबल साइकिल पे वर्क कर रहा है तो हम इसको QL अपॉन QH को TL अपॉन TH लिख सकते हैं. और हम जानते हैं कि कार्नोट साइकिल जो है कौन सी साइकिल है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल साइकिल है? रिवर्सिबल reversible cycle है because its all processes are reversible. Okay, so if it is a reversible cycle we can write efficiency equals to 1 minus TL upon TH. So we can replace this value QL. देखिए QL TL के बराबर नहीं है but the ratio QL upon QH is equal to TL upon TH. Okay, ऐसे नहीं है कि QL कहीं पर आप यहाँ पर TL रख लो और यहाँ पर QH रख लो तब गलत हो जाएगा. The ratio QL
upon QH is equal to TL upon TH. Okay. So this is the Carnot cycle. After that, we have discussed the limitation of Carnot cycle. What are the limitation of Carnot cycle? Can anyone tell me? Sir, Carnot cycle is a practical cycle. Mm-hmm. Sir, in Not a which practical cycle. yes, sir, not a practical cycle in which two processes are very fast and two processes are very slow. Yes, and combination of these four processes in a cycle is not Not possible. possible. Okay, so we have discussed that the Carnot cycle is the most efficient cycle, which gives the maximum efficiency or maximum work. However, it is not a practical cycle because it consists two isothermal processes which are very slow and two reversible adiabatic process which are very fast. क्योंकि एक प्रोसेस को अगर आइसोथर्मल होना है तो जो हीट ट्रांसफर है वो टेम्परेचर डिफरेंस, जो हीट ट्रांसफर का जो सोर्स और साइकिल का जो हीट टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बिल्कुल टेंस टू जीरो होना चाहिए ताकि टेम्परेचर ना बढ़े। दूसरा, अगर हम ऐसे हीट ट्रांसफर करेंगे तो हमको इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा। और तीसरा, अगर इतने कम टेम्परेचर डिफरेंस से हीट ट्रांसफर करना है तो द सरफेस ऑफ द हीट ट्रांसफर शुड बी वेरी वेरी लार्ज। सो ऑन द अदर हैंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज कंप्लीट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। कोई भी इंजन है, अगर जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा आरपीएम होता है, 1000 आरपीएम। तो एक मिनट में वो 1000 रिवॉल्यूशन कर ले रहा है और एक रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है अगर तो यानी कि एक मिनट में 1060 सेकंड में 1000 साइकिल कंप्लीट हो जा रही है इंजन की। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक जो दो प्रोसेस जो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है वो साइकिल में हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट प्रोसेसेस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ साइकिल, देयरफॉर कार्नोट साइकिल इज अ नॉट अ प्रैक्टिकल साइकिल। मगर ये कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकल साइकिल तो नहीं है, बट जो इफिशियंसी आ रही है दैट विल बी मैक्सिमम। इससे ज्यादा इफिशियंसी फॉर अ गिवन टेम्परेचर लिमिट। फॉर अ गिवन टेम्परेचर लिमिट जब मैं बोलता हूं तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट TH एंड TL। टेम्परेचर लिमिट क्या है, अभी मैंने आपको शो किया जो कार्नोट साइकिल है वो दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रही है। फर्स्ट वन विच इज ट्रांसफरिंग हीट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स or reservoir, thermal reservoir which is at high temperature, and the sink, the thermal reservoir which is at low temperature। तो जहां से हीट सप्लाई हो रही है और जहां से हीट रिजेक्ट हो रही है उन दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में अगर कोई और इंजन भी वर्क करोगे तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी आएगी, कार्नोट साइकिल की। तो ये प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है, बस इसको एज अ रेफरेंस लेते हैं कि हाँ कार्नोट की इफिशियंसी 70% आई है, तो जो हम नया इंजन बनाएंगे, नई साइकिल बनाएंगे, उसकी इफिशियंसी 70 के अप्रोक्सीमेट पहुंचनी चाहिए। उससे ज्यादा तो पहुंच नहीं सकती, बट 70 के अप्रोक्स पहुंचनी चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्नोट प्रिंसिपल। अब दो कार्नोट के थ्योरम से दो प्रिंसिपल निकल के आए हैं, वो प्रिंसिपल क्या है? This is very important and they are also asked in the exam. So the two conclusions relate to the thermal efficiency of reversible and irreversible heat engine, and they are known as Carnot principle, expressed as follows. तो देखिए, मैंने बताया आपको दो तरीके की इंजन हो सकते हैं, दो तरीके की साइकिल हो सकती है। फर्स्ट वन इज अ रिवर्सिबल साइकिल एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल साइकिल। इफ वी आर टॉक अबाउट कार्नोट साइकिल, so it is obvious that it is automatically a reversible cycle because all processes are reversible। और अगर हम किसी और इंजन की बात करें जो एक्चुअल है तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल इंजन होगा। ठीक है, तो दोस्त कार्नोट के प्रिंसिपल से दो पॉइंट निकल के आते हैं, दो प्रिंसिपल निकल के आते हैं जो किससे रिलेट करते हैं, इफिशियंसी से एक्चुअल साइकिल की और रिवर्सिबल साइकिल की। ओके, तो ये प्रिंसिपल क्या है, द इफिशियंसी, ध्यान से सुनिएगा, द इफिशियंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल हीट इंजन is always less than the efficiency of a reversible one operating between the two same reservoir। ये चीज ध्यान देने वाली है, बिटवीन द टू सेम रिजर्वायर। सपोज हमारे पास जो टेम्परेचर लिमिट है TH और TL, ये दोनों फिक्स हो गए।
कि जो हमारा सोर्स होगा वो मान लीजिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से हम हीट ट्रांसफर करेंगे और जो रिजेक्ट करेंगे वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। तो ये दो टेम्परेचर TH एंड TL फिक्स हो गए। अगर ऐसा है, इन दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में हमारे पास दो इंजन है, फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज रिवर्सिबल। सो अकॉर्डिंग टू द कार्नोट प्रिंसिपल किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी? रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल की होगी। तो यही पहला स्टेटमेंट कहता है कार्नोट प्रिंसिपल का, कहता है द इफिशियंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल वन। तो इट मींस द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इज मोर देन द इरिवर्सिबल। क्लियर? दैट इज क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया? ओके। यस सर। दूसरा पॉइंट है the efficiency of all reversible heat engine operating between the same two reservoir are same। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है the efficiency of all reversible heat engine। तो हमारे पास मान लीजिए 4 इंजन है, 1 2 3 4, 4 इंजन है और चारों के चारों क्या है? रिवर्सिबल, और वो वर्क कर रहे हैं सेम टेम्परेचर रिजर्वायर पे में, यानी कि TH एंड TL फिर से फिक्स कर दिया। ये TH है और ये TL है। तो अगर हमने ये दो टेम्परेचर फिक्स कर दिए और इन दो टेम्परेचर के भी इन दो टेम्परेचरों पे मान लीजिए n नंबर ऑफ इंजन वर्क कर रहे हैं, 1 2 3, तीन इंजन वर्क कर रहे हैं, तो तीनों अगर रिवर्सिबल हैं तो तीनों की इफिशियंसी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। ओके, क्लियर? क्लियर? नहीं आया समझ में बेटा? आवाज आ रही है? देखिए फिर से समझिए, दो स्टेटमेंट कार्नोट प्रिंसिपल के कौन कौन से हैं? पहला तो कह रहा है, सिंपल है, कि जो इरिवर्सिबल साइकिल होगी उसकी इफिशियंसी कम होगी किससे? रिवर्सिबल से। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कितने भी इंजन हैं, अगर सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, सबकी इफिशियंसी सेम होगी अगर वो दे आर वर्किंग ऑन अ सेम टेम्परेचर लिमिट। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझिए, वी हैव टू टेम्परेचर सोर्स। First one is high temperature source that is at TH, and the another one is low temperature reservoir which is at TL। ओके, तो हमारे पास दो टेम्परेचर सोर्स हो गए TH एंड TL, इनके बीच में तीन इंजन है, 1 2 3। तो द फर्स्ट वन इंजन इज अ irreversible engine, this heat engine is a irreversible one, and the second is reversible and third is also reversible। So according to the Carnot first principle, पहला प्रिंसिपल क्या है? द इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन द रिवर्सिबल वन व्हेन इट वर्क ऑन द बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। तो दोनों तो एक ही टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहे हैं, पहला और दूसरा, तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी? पहले की कि दूसरे की? दूसरे की। दूसरे की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल इंजन है। दिस इज क्लियर? एंड द सेकंड, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, जो अगर मान लीजिए दो इंजन है और एक में मान लीजिए पेट्रोल डाल रखा है और दूसरे में डीजल डाल रखा है, तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी? बताइए। अगर एक में पेट्रोल है और दूसरे में डीजल है तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी? बताइए बताइए बताइए। दोनों की बराबर होगी, क्योंकि अगर कोई इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम करता है और कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है, तो उस पे वर्किंग जो उसका वर्किंग फ्लूइड है उसका असर नहीं पड़ता। इवन केरोसिन भी होता तब भी इन दोनों की इफिशियंसी बराबर आती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कार्नोट प्रिंसिपल, अगर दो रिवर्सिबल हीट इंजन किसी सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क करते हैं तो उनकी इफिशियंसी आपस में बराबर होती है। यही तो था सेकंड स्टेटमेंट। The efficiency of all reversible heat engine operating between the same two temperature reservoir are the same। तो efficiency अगर दो reversible heat engine है, दो
टेम्परेचर लिमिट के बीच, फिक्स लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं, तो उनकी इफिशियंसी आपस में बराबर होगी। दैट इज क्लियर और नॉट? दोबारा एक्सप्लेन करना है बेटा कि समझ में आ गया है? सर हेलो सर। यस सर अगर ऐसा होता तो सर हम लोग बाइक में सर केरोसिन ही डाल के चलाते हैं। बेटा, we are talking about Carnot cycle, which is not possible. I have told you that reversible process is not possible in a practical life. बताया था। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। आप फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं अपने इंजन में। जब जहां पे भी फ्रिक्शन आ गया, वहां पे प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल नहीं रहेगी, इरिवर्सिबल बन जाएगी। सो वी आर टॉकिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल इंजन विच इज रिवर्सिबल हीट इंजन। क्लियर बेटा? यस क्लियर अनुज? तो अगर जो हम इरिवर्सिबल की बात करें, इसमें अगर जो फ्यूल अलग अलग है, जैसे कि आपने कहा रिवर्सिबल, उनकी इफिशिएंसी अलग होगी, उसके बारे में हमने बात ही नहीं करी। हाँ सर, नहीं फ्यूल का कैसे इफेक्ट पड़ता है सर? जैसे डीजल और पेट्रोल में बता रहे थे भैया आप। अभी बेटा जब साइकिल पढ़ेंगे आप, कार्नोट साइकिल, जब आप ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा वो चीज, ठीक है? अभी हम इंजन में घुसे नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आइडलाइजेशन, जो आइडल है, ठीक है? अभी हम सिर्फ अभी तो हमने हीट इंजन पढ़ा पिछले लेक्चर में, है ना? तो अभी हम इंजन में नहीं जा रहे हैं। जब इंजन में जाएंगे, पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, वी आर डिस्कसिंग। ओके, देन वी विल डिस्कस। ओके, क्लियर बेटा? फिलहाल के लिए वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ओके, इफ वी हैव 3 इंजन, 1 is irreversible and 2 are reversible, then the efficiency of irreversible is always less than reversible, and the reversible engines efficiency of reversible engine are same when they are working on the same temperature limit. That is clear? यहाँ तक समझ में आया बेटा? आगे बढ़ूं? यस सर। आगे बढ़ूं? ओके ना, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये क्या होता है, यहाँ पर एक गोला बना रखा है आपने, ये कैसे वर्क कर रहा है? एक हाई टेम्परेचर सोर्स है, एक लो टेम्परेचर सोर्स है, और यहाँ से हीट गई और इसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, कुछ हीट रिजेक्ट हो गई। तो बेटा मैंने कहा था ये गोला नहीं है, इसका भी कुछ मीनिंग है। इट इज अ साइक्लिक डिवाइस। बोला था, किसने पूछा था मुझसे? किसी ने तो पूछा था, चलिए छोड़िए। सो इन दिस, जो ये गोला मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसमें मैं हीट इंजन लिख देता हूँ, वो क्या है? उसके अंदर एक साइकिल चल रही है, एंड दिस साइकिल इज अ कार्नोट साइकिल। सो इन दिस प्रोसेस द हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट आ रही है और सेम टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो रही है, QH. Okay, then it is entering into the turbine where it get expand and produce work. Then it transfer in the in the heat exchanger, and heat is rejected at a constant temperature. Then it enter into the compressor where it consume work and transfer to the, and after that fluid enter into the into the heat exchanger where heat is added at a constant temperature. So in this process work is produced, in this process work is consumed. So the always in the power cycle the work produced is more than the work consumed, so we will get net positive work output. तो हमारे पास वर्क आउटपुट W मिल जाएगा हमको। तो जब हम QH हीट सप्लाई करते हैं, QL हीट रिजेक्ट होती है सराउंडिंग में और W वर्क मिलता है। सो now how we calculate efficiency? Efficiency is equal to output upon input. तो output क्या है हमारे पास? W net, and what we have supply, we have given the input QH. Okay, and this W net can be written as QH minus QL. So this W net can be written as QH minus QL, because for a cyclic process the algebraic sum of heat is equal to the algebraic sum of work. ये कहाँ से आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स for cyclic process. तो अगर हम किसी साइकिल की बात करें तो नेटवर्क कितना होता है? जितना भी हीट इंटरेक्शन हुआ, तो हीट इंटरेक्शन कितना हुआ है? QH minus QL. Okay, now this can be simplified as
1 सर माइनस इसमें कारनोट इंजन में भी तो थोड़ा बहुत हीट गई थी, अभी आपने बताया कम वो करने के लिए। हाँ सर उसमें भी तो थोड़ी बहुत हीट लगी थी मतलब, तो उसका नहीं कहाँ कैलकुलेट पर? करेंगे उस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कारनोट हीट इंजन जहाँ लिखा है सर आपने। ये गई हीट, ये हाँ क्या जी। है, ये हीट गई और ये हीट इधर आई। ओके, हाँ दिस प्रोसेस इज कौन सी प्रोसेस थी ये? साइक्लिक। रिवर्सिबल, हाँ रिवर्स। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, अच्छा रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ये प्रोसेस कौन सी है बेटा, बताओ? सर एडियाबैटिक, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो। यस सर। ओके, एंड इन दिस प्रोसेस isothermal isothermal compression, कंप्रेशन। and in this process reversible adiabatic कंप्रेशन। compression. यस So सर। this process and this process is, this process and this processes are reversible adiabatic. So in the adiabatic process heat transfer is जीरो। zero. यस सर Okay, सर। clear? यस सर। Clear? Okay, यस सर। good, कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन पूछना आपका काम है, जहां पर भी डाउट हो पूछिए। Okay, so this is the Carnot cycle, and Carnot cycle is a reversible cycle. So for the Carnot cycle, what we can write this expression, हम इस expression को और क्या लिख सकते हैं बताइए मुझे, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। अगर ये साइकिल Carnot सर cycle 1 है माइनस तो टी एल अपॉन टी 1 एच। minus TL upon TH. very good. So efficiency equals to 1 minus TL upon TH. So because it's a reversible heat engine, okay, reversible cycle, so we can say QL upon QH equals to TL upon TH. QL is not equal to TL and QH is not equal to TH, but the ratio QL upon QH is equal to TL upon TH. Or we can say the ratio QH upon QL is equal to TH upon TL. That is clear? ये चीज याद रहेगी हमेशा, Yes, ये sir. चीज याद रहेगी आप लोगों को, ठीक है? ये सिर्फ किसके लिए हो रहा है, ये सिर्फ किसके लिए हो रहा है बताइए? सर कारनोट Reversible साइकिल। Carnot cycle. कारनोट के लिए। रिवर्सिबल के लिए, जब भी हमारा हीट इंजन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, वी कैन राइट QL upon QH, the ratio of QL upon QH is equal to TL upon TH, where QL is the heat rejected to the sink or low temperature reservoir and QS is the heat supply from the high temperature reservoir and TL is the temperature of low temperature reservoir and TH is the temperature of high temperature reservoir. Okay, now so this is also done. Now like heat engine, if our heat pump and a refrigerator work on reversible cycle, जिस तरीके से हमारा क्या है, we know that heat engine is worked on a cyclic device. Similarly, the refrigerator and heat pump also worked on the cyclic device. Okay, if the cycle is reversible for a refrigerator and heat pump, we say Carnot refrigerator, and the cycle of heat pump is reversible, then we say Carnot heat pump. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताइए? If our refrigerator work on reversible cycles, then we can say it is a Carnot refrigerator. Similarly, if our heat pump is worked on a reversible cycle, then we say it is a Carnot heat pump. ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So when our cycle is, when we talk about refrigerator, so what is the COP of refrigerator? Desired effect upon work required. So in case of refrigerator, what is desired effect? कूलिंग इफेक्ट। Cooling effect. It means what we have to write, QS or QL? QL। QL QL. अपॉन माइनस QL। QL. So our desired effect is cooling effect, and we have to write cooling effect QL, and what is the work required? W net. Okay, so COP of refrigerator is equal to QL upon W.
So W can be written as, W को कैसे लिख QH सकते हैं? minus QL. QH minus QL. Since this refrigerator is worked on a reversible cycle. किस पे वर्क कर रहा है? रिवर्सिबल साइकिल पे. So we can write COP of refrigerator is equal to TL upon TH minus TL. Again, I am repeating that QL is not equal to TL. QH is not equal to TH. QL is not equal to TL. But for a reversible cycle, अगर हमारा कहीं पे क्वेश्चन आ रखा है और उसमें लिखा है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या फिर कार्नोट रेफ्रिजरेटर, देन वी कैन राइट QL अपॉन QH माइनस QL इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जैसे उसमें किया था सिमिलरली वैसी. अगर इफ यू डिवाइड QL तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा QH अपॉन QL और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. तो यहाँ पर अब फिर से आपके पास क्या आ गया QH अपॉन QL और QH अपॉन QL को आप क्या लिख सकते हो TH अपॉन TL. उसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट TL अपॉन TH माइनस TL. ये चीज किसके समझ में नहीं आई? फिर से एक्सप्लेन करूं? बेटा बताओगे नहीं तो कैसे करेंगे? सर कर दो, एक बार फिर से कर दो. ओके. This refrigerator work on which cycle? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. हमने क्या माना है? Reversible. रिवर्सिबल. ओके. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को क्या लिख सकता हूं बताइए? अगर मैं QL से डिवाइड कर दूं इसको ऊपर भी और नीचे भी तो कोई फर्क पड़ेगा इधर COP ऑफ R पे? रेफ्रिजरेटर की COP पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? QL से. तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? QL अपॉन QL 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? QH अपॉन QL माइनस 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने QL से डिवाइड कर दिया. कोई फर्क पड़ा है एक्सप्रेशन पे? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? नो सर, नहीं पड़ा कुछ फर्क. कोई फर्क नहीं पड़ा ना. फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल दिस QH अपॉन QL इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? TL अपॉन TH upon TL. TH अपॉन TL. TL. सो 1 अपॉन, इसको मैं ये लिख सकता हूं फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल TH अपॉन TL माइनस 1. अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. TL इस तरफ चल जाएगा तो क्या आ जाएगा? TH माइनस TL अपॉन TL. अब TL को ऊपर भेज देंगे तो वी विल गेट TL अपॉन TH माइनस TL. हमारा राइट? कोई गलती करी मैंने? नो सर. सही लिखा था? यस सर. क्लियर बेटा? ये समझ में आया? सो Yes, sir. COP of refrigerator is QL upon QH minus QL. But if our refrigerator is worked on a reversible cycle, then we can write TL upon TH minus TL. तो COP of refrigerator इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमारी साइकिल रिवर्सिबल हो या फिर जो हमारा रेफ्रिजरेटर हो वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर हो. क्लियर? मगर ये चीज ध्यान रखेंगे कभी भी जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर है या रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल साइकिल. क्लियर? Similarly, we are also discussing the efficient COP of heat pump. So what is the COP of heat pump? Desired effect upon work required. And what is the desired effect in case of heat pump? What is the desired effect in case of heat Heating pump? effect. Heating effect. QH. Heating effect. So we will get COP of heat pump is equal to QH upon W. Yes. And W can be written as QH QH upon minus QL. QL. Okay.
Now, if this heat pump is a Carnot heat pump or this heat pump worked on a reversible cycle, so what should be the COP of heat pump? COP of heat pump को क्या लिख सकते हैं हम? और TH upon TH minus TL. very good. So COP of heat pump is equal to TH upon TH minus TL. Clear? समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट इस पे? Yes, sir. Okay. अच्छा, एक चीज ये फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं. कार्नोट प्रिंसिपल क्या थे? पहला प्रिंसिपल क्या था बताइए? कार्नोट प्रिंसिपल क्या था पहला? Sir, efficiency of reversible heat engine is less than of efficiency of reversible one. वेरी गुड. तो जो इफिशियंसी होगी इरिवर्सिबल इंजन की वो हमेशा कम होगी किससे? रिवर्सिबल से. और दूसरा क्या था? सर अगर जो दो रिवर्सिबल इंजन मतलब दो टेम्परेचर डिफरेंस पे काम कर रहे हैं तो उनकी इफिशिएंसी सेम होगी. सेम मतलब होगी. अगर दो या कितने भी इंजन अगर सारे के सारे रिवर्सिबल हैं और दो से सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी बराबर होगी. ठीक है बेटा, एक क्विज आया होगा, उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और जवाब दीजिए. छोटा सा क्विज है, जल्दी से फटाफट कीजिए. ठीक है बेटा, जितनों ने कर लिया कर लिया. ठीक है, बाकी लोग क्लास में है ही नहीं, ये एज्यूम किया जाएगा. ओके, सो कर लिया सबने? yes, sir. ओके. नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल. तो देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? अ कार्नोट हीट इंजन रिसीव 500 kilojoule of heat per cycle from a high temperature source at 652 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पहली चीज पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा इंजन है? कार्नोट हीट इंजन है. इट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन. ओके, एंड इट रिसीव्ड हीट 500 किलोजूल. तो यानी कि ये कौन सी हीट है? QH और QL? Sir, QL.
QH सर, हीट इंजन QH नहीं सर, QH है बेटा, QH सर, QH QH। हाँ सर, ठीक है, QH। रिसीव कर रहा है QH है। एंड कहाँ से रिसीव कर रहा है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टेम्परेचर सोर्स 652 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये काय का टेम्परेचर दिया है? TH दिया है, TL दिया है? सर सर TH। TH। QH दिया हुआ है, वेरी गुड। एंड रिजेक्ट हीट टू अ लो टेम्परेचर सिंक एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि जो ये हीट मिल रही है इसको ये रिजेक्ट कर दे रहा है किसमें? लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, कितने में? 30 डिग्री सेंटीग्रेड में। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस कार्नोट हीट इंजन and the amount of heat rejected to the sink per cycle। तो इसको QH मिल रहा है और ये QL रिजेक्ट कर रहा होगा और W वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इसकी हमें इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है और दूसरा हमको अमाउंट बताना है कि कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है। सो व्हाट वी हैव, तो हमारे पास क्या क्या है, हमको गिवन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो उसका देखेंगे गिवन डेटा क्या क्या है। तो QS दिया हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 किलो जूल, वेरी गुड। एंड सेकंड इज TH इज गिवन, TH is 652 degree centigrade. So we have to always convert this temperature into Kelvin scale. Always remember that you have to convert the degree centigrade into the Kelvin scale. So 652 converted into Kelvin scale, we will get 925 Kelvin. Second, TL. TL is 30 degree centigrade. So convert this 30 degree centigrade into Kelvin scale, we will get 303 Kelvin. Okay. इसके अलावा तो कुछ नहीं, कुछ और दिया हुआ है? एनीथिंग एल्स? अब क्या निकालना है? फर्स्ट इफिशियंसी। ओके, फर्स्ट इफिशियंसी कैलकुलेट करनी थी और दूसरा वर्क कैलकुलेट करना था, हीट रिजेक्टेड। तो द इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QL अपॉन QH। कैन यू कैलकुलेट इफिशियंसी फ्रॉम दिस? No sir। Can you calculate? So what we have to do, we have to apply the another formula, because we know this is the Carnot heat engine. So efficiency can be written as eta equals to 1 minus TL upon TH. ये लिख सकता हूँ because it is the Carnot heat engine. So we can write this expression. Clear? नहीं आया समझ में? यस सर। Okay. So calculate efficiency and tell me the value. Sir, सर 67.2%। 67.24%। Okay. So we have put the value of TL and TH and we will get efficiency is equal to 0.672 or 67.2%. Clear? Now we have completed the first part, the thermal efficiency part. Now we have to calculate the amount of heat rejected. So how we calculate the value of heat rejected? QL from this formula. We will get the efficiency. So we have the efficiency. We have the value already QH. So QH की value already हमारे पास. Now we have to calculate the value of QL. So calculate कीजिए. So efficiency हमारे पास आ गई है. We know efficiency is equal to 1 minus QL upon QH. So we have efficiency, we have QH, we have to calculate QL. बताइए मुझे. सर 163.72 किलो जूल। 163.7. So when we put the value, so it is 0.672 equals to 1 minus QL upon 500. So when we simplify it, we will get QL is equal to 164 किलो जूल। एक बार चेक कर लीजिए बेटा, आपका कैसे 167 आ रहा है? ये मेरी गलती है सर कैलकुलेशन? 163.73। ओके 163.7, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 164। सबका आ गया बेटा? Yes sir। यस सर। Now we move forward. The next question. What is the next question? A domestic food freezer maintain a temperature of 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक हमारे पास जो फ्रिज है वो उसका जो टेम्परेचर है वो -15 मेंटेन कर सकता है, ठीक है। यानी कि कौन सा टेम्परेचर दिया हुआ है? TH की TL?
TL. TL दिया हुआ है, वेरी गुड, बिकॉज इट दिस इज द लो टेम्परेचर एंड द एम्बियंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो कमरे का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो दिस इज TH. ओके, इफ heat leaks into the freezer, if the heat leaks into the freezer continuously at a rate of 175 kilojoule per second, what is the least power necessary to pump this heat out continuously? तो ये तो क्वेश्चन तो छोड़ो, पहले ये चीज बताइए कि ये क्या दे दिया है. ये क्या कह रहा है? ये क्या है? 1.75 किलो जूल पर सर QH QH है. और कोई? the heat leak into the freezer. Okay, listen. सर ये है QL. एक सेकेंड. This is TH. This is your ambient temperature. Ambient मतलब room temperature. And this is TL, low temperature, which is the temperature inside your refrigerator. अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है? जो ये आपका लो टेम्परेचर है, यहाँ से हीट रिमूव करता है. कितना अमाउंट? QL अमाउंट. तो कितना हीट रिमूव कर रहा है? QL अमाउंट. और यहाँ कितनी ट्रांसफर कर रहा है? QH अमाउंट. So for a refrigerator, you have to supply some amount of work that is equal to W. And this is your refrigerator. So we have a domestic food freezer. ठीक है, हमारे पास कोई फ्रीजर है जो -15 पे है. So TL is equal to -15 डिग्री सेंटीग्रेड. अब क्या होता है, जैसे हम बार बार फ्रिज खोलते हैं, बंद करते हैं, कुछ सामान रखते हैं, तो क्या होता है, जो बाहर की हीट है, अब ये कितने पे मेंटेन था? TL कितने पे मेंटेन था? मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेंटीग्रेड. ये -15 पे है. तो अगर हम बार बार फ्रिज का ढक्कन खोलेंगे, बंद करेंगे, तो क्या होगा? जो अंदर -15 है वो बढ़ने की कोशिश करेगा. तो यानी कि जब हम ढक्कन खोलते हैं तो ये इतने अमाउंट ऑफ हीट जो है 1.75 किलो जूल वो अंदर चले जाती है. तो अगर हमको -15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है तो कंटिन्यूअसली इतने ही अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से अभी तो 15 है और 15 ही हमको मेंटेन रखना है. तो अगर कोई हीट बाहर से लीक कर रही है फ्रीजर के अंदर, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट हमको रिमूव करनी पड़ेगी, तभी 15 डिग्री मेंटेन रहेगा. सो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई, या दोबारा बताऊं? कोई तो बोलो. आ गई ना? तो यानी कि 1.75 लीक कर रही है फ्रीजर के अंदर, तो हमको कंटिन्यूअसली QL कितना रिमूव करना पड़ेगा? 1.75. तो ये क्या दिया हुआ है? QL दिया हुआ है 1.75. तो यानी कि QL की वैल्यू 1.75. ओके, क्लियर? अब दूसरी चीज जो पॉइंट नोट करने वाली है, व्हाट इज द लीस्ट पावर. व्हाट इज द लीस्ट पावर. तो हमको जो वर्क कर रहे हैं वो कब मिनिमम होगा? जब साइकिल हमारी रिवर्सिबल होगी कि इरिवर्सिबल होगी? पहली चीज. सर इरिवर्सिबल जब होगी. तो हमको लीस्ट वर्क करना पड़ेगा. सर नहीं रिवर्सिबल करना पड़ेगा. रिवर्सिबल होगा तब हमको देखिए, कोई भी इंजन है वो मैक्सिमम वर्क देगा जब वो रिवर्सिबल होगा. और कोई भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, AC है, हीट पंप है, वो कब मिनिमम वर्क लेगी? जब इंजन जब हमारा जो डिवाइस है वो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा. तो अगर वो हीट इंजन है तो तब तो मैक्सिमम वर्क देगा, और जब वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है तो मिनिमम वर्क लेगा. क्लियर? यस सर. Okay, so what we have the temperature TL is equal to -15 degree centigrade. Convert this temperature into Kelvin scale, so we will get 258 Kelvin. Now we have
the temperature TH 30 degrees centigrade, so 30 converted into the Kelvin scale, so it is 303 Kelvin. Okay, apart from that, we have given the value of QL. So QL is equal to 1.75 kilojoule. What we have to calculate? We have to calculate W net. We have to calculate W net, और W net भी ऐसा वैसा कैलकुलेट नहीं करना है, लीस्ट करना है. देखिए अभी देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कार्नोट रेफ्रिजरेटर नहीं लिखा हुआ है, बट जब यहाँ पर उसने लीस्ट लिख दिया, इट मीन अगर हमको मिनिमम वर्क निकालना है तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये रिवर्सिबल होना चाहिए. इट मीन ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर होना चाहिए. ओके, सो वी नो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज QL अपॉन QH माइनस QL. तो यहाँ से निकाल लीजिए COP, निकल जाएगी. कैन यू कैलकुलेट द COP फ्रॉम दिस? You have only value of QL. You have not the value of QH. Can you calculate? No, sir. No, Yes, sir. sir. We have to apply COP of refrigerator is equal to TL upon TH minus TL. Otherwise, we cannot calculate the COP. Now, you have, why you are applying this formula? Because you, in the question, it is, examiner is asking least power. So least power is possible only for the reversible cycle. So now you can apply this formula. Now put the value. Put the value and tell me the value of COP. So 5.73. Okay. और कोई कैलकुलेट करो बेटा. So 5.73 is the COP. Okay. Now we have calculated the COP. Now, but what is asking in the question? Question में क्या पूछा गया है? So W net. W net. So how we calculate W net? What is COP of refrigerator? QL upon W net. So COP of, okay, मैंने क्या निकाल दिया? What is the least power to pump this heat out? So I have calculated the QL. Sorry. So हमको क्या कैलकुलेट करना है? W कैलकुलेट करना है. W कैलकुलेट कीजिए जरा. W कितना आ रहा है? इतनी देर में तो हो जाता है. सर 0.35 किलोजूल पर सेकंड. 0.53 सर 353. 353. Okay, so this is the W. So if it is 0.353, so convert it into joule, है ना? So 353 joule. Okay, you can also say 353 joule. Clear? यस सर. ये सबका हो गया बेटा? नहीं हुआ? कर ही नहीं रहा है कोई? और किसी का हुआ? कंफर्म कीजिए आंसर. यस सर 0.305 आ रहा है सर मेरा तो. यस सर, मेरा भी तो नहीं आ रहा. ठीक So है. 0.0305. ठीक. Okay, so it is in kilojoule, so you can also express it in joule. Okay, 305 like that. So okay, so this is the numerical part. Now you can solve any numerical based on heat pump and refrigerator or in heat engine. So try to solve from the book. ओके, बुक से सॉल्व कीजिए. एक में ट्यूटोरियल भी दूंगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज परपेचुअल मोशन मशीन. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक in our first unit.
So in that topic we have discussed perpetual motion machine of first kind. So can anyone tell me what is PMM first? क्या थी PMM फर्स्ट? परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट क्या थी बताइए? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था परपेचुअल मोशन मशीन? याद ही नहीं है. A device that violates the first law of thermodynamics by creating energy is called perpetual motion machine of first kind. So it is known as PMM1. तो ऐसी डिवाइस जो क्या हो रही हो एंड फर्स्ट लॉ को वॉयलेट कर रही हो, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ये ऐसी मशीन है जो एनर्जी क्रिएट करती है. क्या एग्जांपल दिया था? जिसमें कोई भी इनपुट नहीं जा रहा हो, हीट इनपुट नहीं जा रहा हो, बट कंटिन्यूअसली वर्क सप्लाई कर रही हो. यानी कि एक ऐसी बाइक जिसमें फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है बट वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी. कोई ऐसी मशीन जिसमें बिजली का तार लगाने की जरूरत नहीं है बट वो कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करती रहेगी. जब उसमें कोई एनर्जी का इनपुट ही नहीं जा रहा है बट कंटिन्यूअसली आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, इट मीन्स दिस डिवाइस इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी. तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? PMM1. तो यानी कि कोई ऐसी बाइक का एग्जांपल है जो मतलब जिसमें कोई भी हम फ्यूल नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, बट वो कंटिन्यूअसली चलने में लगी है. तो अगर ऐसी मशीन बन गई तो वो क्या होगी? वॉयलेट करेगी फर्स्ट लॉ को, और ऐसी मशीन को हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल मोशन मशीन. तो दुनिया में कहीं पे भी इस टाइप की मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट वॉयलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. याद आया कि नहीं आया? ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? सर पढ़ाया था. तो याद क्यों नहीं है फिर? अब आगे ओके, सर. तो दिस इज द PMM1. इसी तरीके से एक और मशीन होती है, उसको बोलते हैं PMM2. तो जो PMM1 है वो तो फर्स्ट लॉ को वो कर रही है, फर्स्ट लॉ को वॉयलेट कर रही है, और जो PMM2 है वो सेकंड लॉ को वॉयलेट कर रही है. एंड अ डिवाइस दैट वॉयलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, PMM2. एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पक्का आता है हर बार कि PMM1 बताओ, कभी पूछता है PMM2 बताओ. तो PMM2 क्या है? जो सेकंड लॉ को वॉयलेट करेगी. अब व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड, अकॉर्डिंग टू द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, 100% इफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल. सो अगर हम कोई ऐसी डिवाइस बना लें जो 100% इफिशिएंसी पॉसिबल कर दे, तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलेंगे? PMM2. यानी कि जितनी हीट उसको ट्रांसफर करेंगे उतना ही वर्क वो प्रोड्यूस करेगी. क्या ऐसा पॉसिबल है 100% इफिशिएंसी किसी भी मशीन के लिए? नो सर. बिकॉज यू हैव टू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग. तो जितनी हीट उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं उतना ही वर्क वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती. अगर ऐसी मशीन बन गई तो सेकंड लॉ वॉयलेट हो जाएगा और ऐसी मशीन को PMM2 बोलेंगे. बट ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है. समझ में आया? याद रहेगा? यस सर. अब याद रहेगा? ठीक है. PMM1 क्या है? PMM1 है ऐसी मशीन जिसमें कोई भी हीट नहीं दे रहा हो बट वर्क कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रही है. और PMM2 क्या है? जिसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो उतना ही अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर दे रही है. तो ऐसी दोनों मशीनें बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं, जो पॉसिबल नहीं. सो मूव टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है, यहाँ से असली थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो गई है. देखिए, फर्स्ट यूनिट जब मैं पढ़ा रहा था, सिस्टम सराउंडिंग सब पढ़ा रहा था, सबकी समझ में आ रहा था. ठीक है, 100% बच्चों को समझ में आ रहा था. उसके बाद जब मैं फर्स्ट लॉ पे आया, जब मैंने उसके बाद फर्स्ट लॉ बताया साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो वहां तक भी सबके समझ में आ रहा था. बट जब मैं प्रोसेस में गया तो कुछ बच्चे छट गए जिनकी समझ में आना बंद हो गया और उनने वहां से अपना दिमाग बंद कर लिया. ठीक है, उसके बाद मैं आया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, 2-4 बच्चे और साइड हो लिए जिनकी समझ में आना बंद हो गया. जब मैंने सेकेंड लॉ स्टार्ट किया तो क्लास की जो 50% आबादी थी वो उनकी समझ में आना बंद हो गया. क्यों? क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं अपना, ये क्लास में प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं. होमवर्क भी करना पड़ेगा साथ में, इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सेकेंड लॉ के बाद आना समझ में आना बिल्कुल ही कम हो गया है. ठीक है,
अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा ये तादाद बढ़ती चली जाएगी जिनकी समझ में आना बंद हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहा है। ओके, so our next topic is a clauses in inequality, and from this point we are going to start the concept of entropy. एंट्रोपी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है और अब मैक्सिमम बच्चों की समझ में आना बंद हो जाएगा। तो बेटा पे अटेंशन, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन कीजिए, बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, जो मैं पीपीटी भेज रहा हूँ इसको पढ़िए ढंग से, तब आपकी कॉन्सेप्ट तब आपको समझ में आएगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। याद कीजिए मेरा पहला लेक्चर मैंने आपको कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो डिफिकल्टी बेटा अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल अप कर रहे हैं सब्जेक्ट का और वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। सो डोंट मिस एनी लेक्चर। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया यहाँ से तो बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ। और अभी नहीं, पूरे इंटायर बीटेक में समझ में नहीं आएगा, फिर भागते रहना कि ये चीजें कैसे हो रही हैं अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। ओके, so we are going to discuss a Clausius inequality. So it was first stated by a German scientist R.J.E. Clausius. तो एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनने हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट भी दिया था, उनने ही ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी दी है। सो व्हाट इज दिस इनइक्वालिटी? इट स्टेट दैट द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq by t is always less than or equal to 0. What does it mean? If we have any cycle, so for the cycle, in a cycle has different processes. So if we take the cyclic integral dq by t, तो ये हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से कम होगा। So how we written it mathematically? So mathematically integration over a cycle. तो ये बीच में जो गोला है ये क्या है, ये दिखा रहा है साइकिल के लिए, यानी कि हम टोटल सम कर रहे हैं फॉर अ साइकिल। तो अगर हम सम करें साइकिल के लिए किसका, dq by t का, तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा या फिर 0 से छोटा आएगा। दिस सिंबल जो ये सिंबल है is used to indicate that integration is performed over the entire cycle. तो जब हमने ये ऐसे करके सिंबल, ये सिंबल हमने वहां पे भी यूज किया था जब हम साइक्लिक समेशन ऑफ हीट एंड वर्क कर रहे थे, तब भी यूज किया था। ठीक है, किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जब हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए बता रहे थे तो मैंने ये सिंबल लगाया था, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क हीट इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क। तो इस सिंबल का मतलब क्या है, हम पूरी साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। सो फॉर अ साइकिल इफ वी टेक dq by dt, dq by t, so it should be always equal to 0 or less than 0. ठीक है, this inequality is valid for all cycles. तो ये जो इनइक्वालिटी है ये सारी साइकिलों के लिए है, चाहे ये वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अभी हमने देखा कि अगर हम कोई हीट इंजन की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सो दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। If our cycle is reversible, then this cyclic integration of dq by t is equals to 0. और अगर हमारी साइकिल है रिवर्सिबल तो हमारा जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है dq by t का, इट इज ऑलवेज लेस देन 0. पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद क्या रखना है आपको, देखिए जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है dq by t का किसी भी साइकिल के लिए, वो हमेशा 0 और 0 या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा। अगर साइकिल हमारी क्या है, रिवर्सिबल, तो dq by t की वैल्यू किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और अगर हमारी साइकिल इरिवर्सिबल है तो ये 0 से क्या होगी, कम, छोटी होगी। क्लियर? सो इस चीज का डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्लॉसियस इनइक्वालिटी को। और बेटा यहाँ से क्लास जो है, सब्जेक्ट जो है 0 से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती सर, मतलब 1 के रेंज में नहीं आ सकती सर इसकी वैल्यू? नहीं बेटा, 0 से ज्यादा नहीं आ सकती। ऐसा क्यों नहीं होता सर? बेटा वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमको प्रोसेस तो कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये एक तरीके से मान लीजिए अब ये सेकंड लॉ को दूसरी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं।
ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं हो सकती, 0 से ज़्यादा 0 से कम क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो हेलो सर। हो गया। यस सर एक बात पूछो सर, ये डी क्यू बाई टी सर ये क्या सिग्निफाई करता है? बेटा, अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे तो हम ठीक है डिस्कस सर। करेंगे, यहीं से हम एंट्रोपी निकालने वाले हैं अभी, ठीक है। ओके सर। यहीं से हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो टीएस डायग्राम है उसमें हीट ट्रांसफर शो करता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये जितने भी एक्सप्रेशन आगे करे ना, ये चीजें अगर हम इनको डिटेल में करते, यहाँ पर हमने एक शॉर्टकट ले लिया। अगर मैं इसका डेरिवेशन कराता आपको तो क्या होता, कौन सी चीज का डेरिवेशन कराता, इस चीज का, एक मिनट। ये तो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोल दिया, क्यू एल अपॉन क्यू एच इज इक्वल टू टी एल अपॉन टी एच, डायरेक्टली बोल दिया, आप लोगों ने मान भी लिया, है ना। बट इस चीज का डेरिवेशन, अभी अगर इस चीज का डेरिवेशन कराऊं तो पूरे एक लेक्चर लग जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला डेरिवेशन करते हैं तब ये वाली टर्म बार बार आती है, क्यू अपॉन टी वाली, ठीक है, डी क्यू अपॉन टी वाली। तो वहां से ये टर्म आई है, वहां से ये इनइक्वालिटी निकल के आई है, ठीक है। तो वहां पर हमने शॉर्टकट ले लिया था, वहां पर ये जब भी हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो ये इनइक्वालिटी निकल के आती है, डी क्यू बाई टी। इसका क्या मीनिंग होता है, डी क्यू बाई टी ही क्यों लिया, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्लियर बेटा। ओके सर। तो थैंक यू सर। हम इतना आपको याद रखना है। थैंक यू सर। अगर अभी सुन लीजिए, भी एक सेकेंड और सुन लीजिए बस। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो डी क्यू बाई टी ऑलवेज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। ओके, इफ इट इज रिवर्सिबल सो इट इज इक्वल टू 0, और इफ इट इज रिवर्सिबल देन इट इज लेस देन 0। अब बेटा, आपके क्लास में जो गूगल क्लास है आपकी, उसमें एक और क्विज आ रहा है, उस क्विज को आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उस क्विज को आप परफॉर्म करेंगे और वो बेस्ड होगा इसी चीज पे। तो इसीलिए मैंने इस चीज को फटाफट अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि क्विज बना हुआ था।